from Sonopanta Dandekar Junior College, Palghar. Today we are starting with the Agriculture Science and Technology 12th Standard, Chapter number 13, Agriculture Marketing. As an examination point of view, at a HSC exam, the weightage of this chapter is 5 marks, and this is very much easy chapter. If you read one time, you get all the information in this chapter regarding agriculture marketing. Now, what is the meaning of agriculture marketing? Whatever product which is we will get from farmers, okay? Whatever product which we will get from farmers, that will be distributed to their consumer. An exchange of a good, at the same time, a cash and money will be get to that farmer. This condition is called it as a agriculture marketing. In this chapter, we will see about a different type of agriculture, like a village market, then primary assembling, then secondary assembling, equalization, then dispersion of that product, different type of market like a primary, secondary, wholesale market, terminal market, which are bigger in size, seaboards. Okay, these are different type of markets. After that, general market. Okay, so in this chapter, we will see about the different type of markets which are related with the farmers, which are benefited to the farmers, as well as a different type of scheme given to a farmers by central agencies and the central government. So starting with this chapter, we will see some definition of agriculture marketing on a different aspect. So the first one, definition, according to a scientist, name of the person, that is Philip Kohler. What is the meaning of agriculture marketing? It has been defined as a marketing as a human activity directed at satisfying the needs and want through an exchange of process. Means whatever product we will get from farmers, that farmer we get money, and consumer will get the product. That is called it as an agriculture marketing. According to American Marketing Association, define a marketing as a performance of a business activity that directs a flow of goods and services from producer to user. So ultimately, same definition hai, according to these things, that is a flow of good. Flow of good, that is a different type of product we will get from market. Okay, so market mein jo products aa rahe hai, ultimately that will be come from that farmers, that is call it as a producers, और producer से ये product किसको मिलेगा? So that is the end user, that is call it as a consumer. That's we people. Okay, हमको मिलेगा वो product and we will give the money for that product. This is call it as a agriculture marketing. There are so many type of definition are available in our book also. We will see some important points. According to a National Commission on Agriculture 12th report 1976, agriculture, okay, this agriculture marketing is a process which starts with a decision to produce a sellable farm commodity, and it involves all the aspect of market structure or a system, both a functional and institutional based on a technical economical consideration, and it includes a pre and post harvest operation, assembling, grading, storage, transportation and distribution. So what is the meaning of that? The same thing, जो farmers produce कर रहा है product in their farm, okay, फिर ये प्रोडक्ट को क्या करना है? हार्वेस्टिंग करना है, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि उसका फॉर्म हो जाने के बाद प्रोडक्ट, that the cutting will be take place. After that cutting, that will be grading according to a different type of operation and assembling. वो प्रोडक्ट को कट करना है, एक जगह assemble करना है in assembling, then grading
according to a different type of product, according to their size, according to a market value. कहीं कहीं पर वो प्रोडक्ट के अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, सो अल्टीमेटली हम लोग वहां पर कुछ अच्छा देंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रेड में डिफाइन करेंगे. स्मॉल साइज, बिगर साइज, देन कलर, then storage. After that, we will divide that product into a different boxes, and that is storage. After that, transportation. We will require a different type of transportation like a train, buses, lorries. Okay, different type of transportation. And after that, that will be distributed in a different type of market. And from that market, this product will get to their consumer. So this is called it as a agriculture marketing. Okay, so these are the another definition. Now the next part of agriculture marketing. As a fast growing economy, agriculture marketing system provide a strong linkage between a farm and non-farmer sector. All of you know that when the farmer is working on their field, so ultimately this farmer is not selling their product into the market. ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए कभी भी जो फार्मर्स है वो नहीं जा सकते. सो अल्टीमेटली फार्मर्स, ओके, एंड नॉन फार्मर सेक्टर यानी कि वहां पर आगे बीच के जो मिडल मैन, जो कि उस प्रोडक्ट को फार्मर से लेके और फिर मार्केट में कंज्यूमर तक क्या करेंगे, सेल करेंगे. सो दिस ऑल दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट इज अ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग सेक्टर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज marketing is a process of identifying a human needs, wants and demands and meeting. It is at a profit or at a process of activities involved in moving the goods from point of production to the point of consumption. So what is the meaning of that? Agriculture marketing में क्या होना चाहिए? So in agriculture marketing, whatever products are taking a farmer, this is totally depend on their consumer. यानी कि consumer क्या demand कर रहा है. If a consumer is demanding some type of rice, so वही rice कौन ये करेगा? So that will be taken from the farmer. So ultimately, a person and a consumer needs is depend on marketing. So marketing is a process of identifying a human needs. हर एक जगह पे एक ही need नहीं हो सकता. When we going to Mumbai, so we will get a different type of product, but these products are at a good level. उसका level and ये सब क्या रहेगा, थोड़ा सा bigger रहेगा, because the people are living on that region, they wants that. But when we are selling a product into a local market, same product low value में जाएगा और उसका grade भी थोड़ा सा क्या रहेगा, low रहेगा. Okay, so according to a human needs, their demands, market will divided into so many parts, and the gathering of products will be take place on that market on the consumption point. Okay, so ye pura sale. Now the next point, agriculture marketing occupies a fairly a low place in agriculture development policies and developing countries. Developing countries like India, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है. देखो यहाँ पर क्या दिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑक्यूपाइज फेयरली लो प्लेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ऐसी जगह पे इसके लिए जो पॉलिसीज है और जो भी गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, इट विल बी एट अ लो प्लेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इसके ऊपर डेवलपमेंट बहुत ही कम है एज लाइक अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. Okay, according to the National Commission on Agriculture 1976 had emphasized that it is not enough to produce a crop or an animal product, it must be satisfactory to the market. यानी कि whatever product that will be get from a farmer जो भी product लेगा वो उसके consumer को satisfaction या market को satisfaction देना चाहिए. Means if I'm taking an example, जैसे कि हमारा पालघर का एक मार्केट है, पालघर के मार्केट में बहुत सारे पीपल आ रहे हैं, दे विल बाय दैट फूड्स. ओके, वो लोग वहां से फूड वगैरह ले रहे हैं, बट द थिंग्स एंड ग्रेडिंग ऑफ अ फूड्स दे वांट्स दे कांट गेट देयर. ओके, जो फूड उनको वहां पे चाहिए था वो वहां पे नहीं मिल रहा है, उसके बदले कुछ अलग मिल रहा है. ओके, और जो मिल रहा है वो भी उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इट एज
नॉट सेटिस्फिकेशन, मार्केट में सेटिस्फिकेशन कंज्यूमर का नहीं होगा. सो अल्टीमेटली इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मार्केट के अंदर सेटिस्फिकेशन, कंज्यूमर जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू दैट जितना उसको वैल्यू एंड जितना प्रोडक्ट चाहिए वो उतना उस ग्रेड का मिल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ साइन ऑफ गुड मार्केटिंग, a good agriculture market. Okay, so this is all about that, the definition, different definition of agriculture marketing according to a different commission. Now there are some problem in agriculture marketing. Okay, बहुत सारे problem भी हो सकते हैं agriculture marketing. The first one problem in agriculture marketing is large number of middleman. बीच में बहुत सारे लोग होते हैं. जैसे कि as I already told you, when a farmer is producing anything, so they can't take that product into the market. अब ये फार्मर जो है वो उसके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में ले जाके सेल नहीं कर सकता. सो अल्टीमेटली वो किसी एक पर्सन को देगा. दैट पर्सन मे बी कमिंग टू दैट फार्म. अगर वो फार्म एरिया बहुत बड़ा है, सो अल्टीमेटली वही पर्सन डायरेक्टली फार्म पे भी आ जाएगा. एंड अल्टीमेटली ही विल टेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम दैट एंड देन ही विल गो टू दैट होलसेल मार्केट, और फिर वहां पे जाके वो किसी और को सेल करेगा. फिर वहां से कोई वो तीसरे पर्सन को सेल करेगा, वहां से फिर वो किसी और पर्सन को सेल होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल गेट टू दैट कंज्यूमर, डायरेक्टली नॉट गेटिंग टू दैट कस्टमर एंड कंज्यूमर. या तो फिर मिडल मैन, जो बीच में जो पर्सन है वो जितने कम होंगे अल्टीमेटली द प्राइस विल बी रिड्यूस. ओके, प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होगा. सो लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन in the agriculture marketing is the first one problem. Small and scatter holding. Okay, small and scatter holding. Now in India, whatever farmer are living, not of all farmer have a bigger land. उनके पास जो फील्ड है वो ज्यादा बिगर नहीं है. सो अल्टीमेटली whatever field they have, जितना भी फील्ड है उतने ही फील्ड में वो लोग क्या करते हैं, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेंगे. सो अल्टीमेटली क्या होता है, whatever agricultural products are there, that will be scattered into a different, यानी कि एक ही रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, या तो एक ही रीजन में बहुत ही कम फार्मर से जिनके प्रोडक्ट आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ स्मॉल एंड स्कैटर होल्डिंग फॉर सेल. कभी कभी क्या होता है, you have seen that. Okay, you have seen that मार्केट में उस प्रोडक्ट का वैल्यू इतना कम है कि अल्टीमेटली फार्मर्स वी विल नॉट गेट टू दैट फार्मर दैट रॉ मटेरियल. और ये जो रॉ मटेरियल है अगर ये सेल नहीं हुआ, सो अल्टीमेटली फार्मर उसको स्टोर करके भी नहीं रख सकता है. सो अल्टीमेटली उसको फोर्सली लो वैल्यू में सेल करना पड़ेगा. सो फोर्स सेल. टेक्नोलॉजी डेवलप प्रॉब्लम इन अ फार्म प्रोडक्शन. हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप नहीं है. Likewise, we have a cold storage. Okay, cold storage बहुत ही कम है हमारे यहाँ पर. So ultimately जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो cold storage में नहीं जाएगा. So ultimately उसको जल्दी से जल्दी सेलिंग होना चाहिए. If not selling is take place in a 1 to 2 days, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका ग्रेड वैल्यू कम हो जाएगा. Poor handling and a packaging. Okay, you have seen that when we are visiting to a mall. अगर आप पालघर में भी हो और कहीं मॉल में जा रहे हो, ओके, रिलायंस मॉल एंड समथिंग, बहुत सारे मॉल है. सो ऐसे मॉल्स में जब जाओगे, सो यू विल गेट दैट प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट यू विल गेट इन द मार्केट. लोकल मार्केट में भी आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा एंड द सेम प्रोडक्ट यू विल गेट इन दैट मॉल. बट मॉल में क्या होगा, पैकेजिंग वगैरह अच्छे से रहेगा. सो अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट लोकल मार्केट में जो आपको 50 रुपीज में मिल रहा है, यू विल टेकिंग दैट प्रोडक्ट इनटू 100 रुपीज इन दैट. Sometime that will be a low price also, but most of time. But इसमें क्या होता है, why they are charging that more price? Because of that packaging and grading. So poor handling and packaging. Okay, अगर packaging अच्छे से होगा तो हैंडलिंग भी अच्छे से होगा, नो डैमेज. सो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा एंड अल्टीमेटली उसको डैमेज नहीं होगा. सो पुअर हैंडलिंग एंड पैकेजिंग इज अनदर प्रॉब्लम. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन ट्रेडिंग. हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोकल मार्केट में फूड मिलता है ना, ज्यादातर वो फूड को ना वो लोग स्टोरेज ग्रेडिंग नहीं करते. मीन्स बिगर प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट से तो उसको एक अच्छे कैटेगरी में, फिर उसके बाद जो स्मॉलर साइज में है, जो अच्छा नहीं दिख रहा, उसको थोड़ा अलग करके फिर सेलेबल. ऐसे वहां नहीं होता. सो अल्टीमेटली दैट इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन ग्रेडिंग. Inadequate storage facility. Farmer don't having that storage facility because ये storage facility के लिए उनको फिर place चाहिए and ultimately the raw material and cold storage के लिए फिर वहां पर light चाहिए, then cold storage machine चाहिए.
that will be a problematic condition. Malpractices in the market, मार्केट के अंदर भी फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आया है उसको हाई वैल्यू स्टोरेज करना वगैरह, उसके वजह से प्राइस कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ मार्केट चार्जेस, एक ही प्रोडक्ट एक मार्केट से दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे जगह से तीसरे जगह जा रहा है, तीसरे जगह से, या तो एक ही मार्केट में कितने बार सेल हो रहा है, सो अल्टीमेटली उसका प्राइस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, समटाइम the farmers and the person who will not get a lack of market information, यानी कि कौन सा मार्केट में कौन सी चीजों को ज्यादा क्या है मांग है, ये नहीं पता लगेगा. ऑर्गेनाइजेशन, because of small scattering, if so many farmers are arranged in one place, अगर वो एक ही जगह आ गए तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट एक जगह आने के बाद थोड़ा सा बिगर होगा, एंड अल्टीमेटली द पर्सन हु इज कमिंग उसको एक ही जगह पे वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मिल जाएगा. सो अल्टीमेटली लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, दैन फार्मर के ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, बहुत ही कम है, इसके वजह से प्रोडक्ट जो भी है वो डिस्पर्स फॉर्म में मिलेगा. Lack of farmer organization, that inadequate means of transport, transportation facility is very low in our country and basically in the local level में ही ये farmers वगैरह होते हैं और वहां पर transportation बहुत कम होता है. communication problem, communication का भी एक problem, means किस market में कौन से product किस दिन ज्यादा लगने वाले हैं ये farmers को नहीं पता है, because today farmer is not as much as using that online platforms. Okay, in a foreign country they having that system developed, so ultimately that system development will give a information कि इस market में इस चीज का ज्यादा value है या तो फिर वहां पर लगने वाला है, so ultimately that people will can go there and sell their product. So that is called it as a communication problem का paper. The market system gets completed only when the commodity are made available from producer to ultimate consumer in his required form at a needed time and a place of consumer. So what is the meaning of good market का एक main ये क्या है? What is a good market? So good market is always better when a customer and the consumer will get their product, whatever product they want, in a proper timing, जिस टाइम में चाहिए था उसी टाइम में, and at a proper place, जिस प्लेस पे चाहिए उसी प्लेस पे अगर उसको एक रिक्वायर अमाउंट में मिल गया, so that is called it as a good marketing and good agriculture market. Now we are starting with the 13.2 process of agriculture market. Okay, the process of agriculture marketing, this will be divided into a 3 part. First one part, assembling and concentration. अब मैंने पहले ही बता दिया कि एक गांव है, एक गांव में 50 फार्मर्स है और 50 फार्मर्स समझो कि कोई एक राइस ले रहा है. ओके, सेम टाइप ऑफ राइस, बट अब ये होल्डिंग क्या है, होल्डिंग जो भी है ये स्कैटर फॉर्म है. अब हमको क्या करना पड़ेगा, सो हमको वो सभी को एक जगह लाना पड़ेगा. हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग दैट ऑल द राइस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस, जहां पर ये सेल होगा, जहां पे सेल होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस. दैट इज कॉल्ड इट एज असेंबलिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन. इक्वलाइजेशन, अब क्या होगा, वहां पे आने के बाद कौन से मार्केट में कितना डिमांड है, ओके, उस प्रोडक्ट का कौन से मार्केट में कितना डिमांड है, वहां पे क्या करना, उसका डिस्पर्जन, देन इक्वलाइजेशन, उसको इक्वली डिवाइड करो, एंड देन डिस्पर्जन, और फिर अलग अलग मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, सो दिस इज अ 3 part of process of agriculture market. Now we will see that the 3 part in detail. The first one part, that is assembling. What's the meaning of assembly? I already told you. Okay, I already told you. Assembling being with a collection of surplus of individual farmer. Okay, individual farmers जो भी है उनके पास से क्या होना चाहिए, वो सब कलेक्ट होना चाहिए एक प्लेस पे. This become essential in moving the produce to the consuming market in a sufficient quantities to permit efficient processing, transportation, storage. यानी कि वो वहां से उठाना है जहां पे फार्मर्स है और वहां से लेके एक प्लेस पे लाना है जहां पर ऑल द फार्मर्स के प्रोडक्ट वहीं पर आ जाएंगे और फिर उसको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ कंसंट्रेशन एंड असेंबली. यानी कि एक प्लेस पे ला देना, सो वी विल गेट आइडिया हाउ मच प्रोडक्ट वी हैव, वो सेम टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग ग्रेड में हमारे पास कितना है वो हमको यहाँ पे मिल जाए. Now that assembling will be take place in a 2 form. ये जो assembling है ये 2 टाइप से होगा. The first one assembling is called it as a primary assembly.
Okay, the first one assembly is called it as a primary assembly. What happen in a primary assembling? Small level पे जो assembling होगा, that is primary. The produce is assembled in a villages and primary market. As a farmer, feel it convenient to view of a small quantities of produce, pressing demands for cash, lack of transport facility, pursuing the information on prices, etc., prevailing at other market. The prominent functionaries, village merchants and inter. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो विलेज के अंदर ही छोटा सा एक प्लेस है, वहां पर सभी ने लाया और एक जगह पे क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। मीन्स जहां पर विलेज के अंदर क्या होता है, दे हैविंग अ लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वहां पर प्लेस में जहां पर फार्मर्स की जो भी उपज है एंड वट एवर दे हैव अ प्रोडक्ट, दैट विल बी अ वेरी स्मॉल। सो अल्टीमेटली इसका डिमांड कंट्री में कहाँ लेके जाए, मतलब जितना फूड लाया है वो उस विलेज में ही सेल हो जाएगा, इतना ही फूड है। सो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी असेंबली. So in a primary assembling, all the farmers will take that product into a one place. Okay, ये एक भी विलेज में जहां पर ज्यादातर लोग आ रहे हैं वहीं पर ले जाके उसको क्या कर देना है, कैश प्राइस में सेल कर देना है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिकॉज वहां ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी वगैरह भी कम है। सो अल्टीमेटली और प्रोडक्ट भी बहुत ही लो है। सो अल्टीमेटली फिर गाड़ी करो, ये करो और फिर बिगर मार्केट में जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि माहिम बाजार है, सो वहां पर एक छोटा सा मार्केट है, वहीं पर लाके सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्राइमरी असेंबली. नाउ द सेकंड पार्ट इज सेकेंडरी असेंबली. सेकेंडरी असेंबलिंग जो है, दैट विल बी टेक प्लेस फॉर द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे टाइम में क्या होगा, सेकेंडरी असेंबलिंग होगा, वहां से फिर वो होलसेल मार्केट में क्या होगा, सेल होगा. सो सेकेंडरी असेंबली इट सक्सीड्स द प्राइमरी असेंबली. It is associated with a greater concentration. Primary assembling में जो concentration था वो बहुत ही लो था, so ultimately वो local market में ही sale हो गया. But in a secondary assembling, the product are too much in a bigger, यानी कि वो वहां के लिए नहीं, कहीं और लेके जाना पड़ेगा. This is initially found in producing area and they are and taken in the consuming area. Normally ये जो secondary assembling होता है, जहां पे प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, इफ सपोज कहीं एक राइस का प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं पर एक राइस का एक बहुत बड़ा मंडी है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ सेकेंडरी असेंबलिंग, जहां पर ये प्रोडक्ट सब आके क्या होंगे, और सेल होंगे. न्यू फंक्शनरीज लाइक कमीशन एजेंट ज्वाइन टू द सेकेंडरी असेंबली. आज ऑलरेडी टोल्ड यू, फार्मर्स आ गया है, सेकेंडरी असेंबलिंग वहां हो रहा है, बट वहां पर अब फार्मर्स रुक के उसको सेल तो नहीं कर सकता. सो अल्टीमेटली फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मिडल मैन, बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इट एज अ कमीशन एजेंट. कमीशन एजेंट का काम क्या है, वो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको फिर सेल करना, मार्केट से ले लेना, फार्मर से ले लेना, एंड वट एवर उसका प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस दे विल गिव टू दैट फार्मर्स, और फार्मर्स फिर वहां से निकल जाए. Okay, so new functionaries like a commission agent join to the secondary assembly. These are wholesale market, और ये नॉर्मली कहां पर होगा, जहां होलसेल मार्केट है, जहां पर बिगर अमाउंट में ये सेल होता है. ओके, द परसेंटेज ऑफ marketable surplus that arrives stands around 70 to 75% at this stage. Before it is dispersed to a different consuming area, it is secondary assembling. The role of commission agent to paramount of the importance. So यहाँ पर किसका रोल इंपॉर्टेंट है, जो कमीशन एजेंट है उनका, बिकॉज दे आर टेकिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, और फिर वहां से ये दूसरी जगह फिर क्या होगा, डिस्पर्स होगा, अकॉर्डिंग टू दैट नीड दैट पर्सन विल बी, जो भी पर्सन है वो इनको कांटेक्ट करके वहां से. नाउ द थर्ड वन, अब तो हो गया ये असेंबली कॉन्सेंट्रेशन में एक जगह हो गया. अब क्या होगा, इक्विलाइजेशन, कहाँ कहाँ पे मार्केट है और इतने जगह पे क्या नीड है, अकॉर्डिंग टू दैट दैट पर्सन विल कांटेक्ट टू दिस पर्सन, और फिर इसका क्या होगा, इक्विलाइजेशन, यानी कि वहां से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा. ओके, सो इक्विलाइजेशन इज एडजस्टमेंट एंड सप्लाई एंड डिमांड as per requirement based on the time, place and quantity. So as I already told you, अब फिर वहां से छोटे छोटे जो भी मार्केट से जहां पर जितना डिमांड है, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेड, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, दैट विल बी डिस्पर्स इनटू द डिफरेंट सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ये क्या होगा, इक्वलाइज होगा, अलग अलग जगह पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन, the products are moved from surplus area to deficit area.
सरप्लस यानी कि जहां पर बहुत ही ज्यादा है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन में हमने क्या किया था, स्टोर किया था। अब वहां से उस प्रोडक्ट को जहां पर भी डिमांड है और जहां पर डेफिसिट है यानी कि वहां पे कम हो गया, ऐसी जगह पे क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। सो द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन मीन्स दैट एक जगह गैदर करना और फिर जहां पर भी कम हो रहा है वहां पर उसको क्या करना, सप्लाई। अब ये सप्लाई के लिए क्या लगेगा, so the transportation is very required. Okay, so transportation should be well developed in this regard. The adjustment of quantities as per requirement is another important aspect. So अभी equalization में फिर क्या होगा, हमको पता लगा कि इस मार्केट में इतना प्रोडक्ट चाहिए, so ultimately हमारे पास उतना प्रोडक्ट है क्या, yeah, we having that product, and then फिर according to the transportation facility ये क्या होगा, प्रोडक्ट वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाए। as well as ट्रांसपोर्टेशन तो होना ही है, as well as एडजस्टमेंट ऑफ क्वांटिटीज एज पर रिक्वायरमेंट, जितना क्वांटिटीज चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वहां पर जाना भी बहुत जरूरी। यानी कि अगर क्वांटिटीज अगर 1 टन का है और हमने हाफ टन दिया, बहुत ही कम हाफ दे दिया, सो फिर जो भी कस्टमर्स वहां पे हैं उनको अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वहां पर अगर कम प्रोडक्ट गया तो डिमांड ज्यादा है, सो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जितना डिमांड चाहिए उतना ही जाना चाहिए, ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा चले गया फिर भी प्राइस ये लो या तो हाई होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो दैट वन इज importance for the equalization. Equalization में ये हो। Now the next part, third one part, that is called it as a dispersion. Now what's the meaning of dispersion? The produce that is collected from producing area should be made available to the millions of consumer through the consuming market. अब क्या होगा, मार्केट में जहां डिमांड सब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होके क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ डिस्पर्सन। Okay, so that is called it as it. But there are some product in the agriculture also that is not directly going to the consumer. जैसे राइस है, ओके, तो राइस क्या फार्मर्स से लेंगे तो वहां से पहले कहाँ भेजना पड़ेगा, तो उसको पॉलिशिंग है, देन उसका कवर वगैरह निकालने के लिए वहां पर, देन कॉटन है, तो कॉटन क्या मार्केट में यूज होगा, नहीं, उसका क्लॉथ्स बनाना है, सो अल्टीमेटली उस पर प्रोसेसिंग होगा। देन शुगर कैन है, शुगर कैन फिर वो मशीन में जाएगा, उससे शुगर कैन से शुगर का जूस निकालेंगे, देन आफ्टर दैट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट शुगर, और फिर शुगर मार्केट में आएगा। ओके, सो देयर आर सम प्रोडक्ट, ओके, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको मार्केट से डायरेक्टली डिस्पर्स नहीं किया जाता। ओके, सो द प्रोडक्ट लाइक अ कमोडिटी लाइक अ पैडी है, कॉटन है, शुगर कैन एक्सेट्रा नीड टू बी प्रोसेस बिफोर कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ राइस, ओके, देन यार्न एंड क्लॉथ्स। ओके, सो जो भी हमारा पैडी था उससे हमको राइस मिलेगा, कॉटन से यार्न, and then cloth, sugar can से जैगरी होगा, शुगर होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, and after that that will be going into the market for a sale. There are some petty traders generally without shop who move from village to village with their carts, buy from the farmers and sell nearby market. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं, डायरेक्ट वो लोग क्या करते हैं, दे आर विजिटिंग टू दैट फार्मर से वो प्रोडक्ट लिया, फार्मर से प्रोडक्ट लेके गाड़ी में डाला और गाड़ी में से ही पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह गए, मतलब कहीं बीच में सेल नहीं किया, डायरेक्टली उस पर्सन ने उठाया और वहीं से वहां गाड़ी में से ही क्या कर दिया, सेल कर दिया अलग अलग मार्केट। लाइकवाइज यू हैव सीन दैट हमारे यहाँ पर पालघर में भी आपको दिखेगा, बहुत सारे जो गाड़ी वाले होते हैं वो नासिक से डायरेक्टली जो भी ये होता है दैट इज पोमोग्रेनेट वगैरह वगैरह, सो ये सब प्रोडक्ट को डायरेक्टली वहां से गाड़ी में ही उठा लेते फार्मर से, और फिर डायरेक्टली जो भी हमारा स्ट्रीट वगैरह होता है, रोड वगैरह होता है, उसके साइड में गाड़ी लगा के वहीं पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर मिडल मैन नहीं आएगा, सो अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं, दैट विल बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट इनटू अ लो प्राइस, कम प्राइस में उसको निकाल देते हैं, सो अल्टीमेटली कस्टमर आल्सो बेनिफिटेड और उनको भी बेनिफिट हो जाता है। ओके, सो ये एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन द डिस्पर्सन। एंड आफ्टर दैट agriculture market is a place where the sellers, farmers and a trader meets a buyer for exchange of agriculture produce with a money. Okay, so what happened in agriculture marketing, agriculture market is a one type of place where a seller, that is farmer and trader, seller यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो उनके प्रोडक्ट को ला रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो उनके प्रोडक्ट को वहां पर सेल कर दे रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो पर्सन फिर कंज्यूमर को सेल कर दे। There are various dimensions of any specified market
according to which market are classified. Okay, so after that there are so many type of market. Okay, so today's lecture we will see that. In next lecture we will see next point, that is the type of agriculture marketing and different type. वो part हम लोग next lecture में. If anyone have any question, so you can call me on my number or WhatsApp me on my number, that is 9273887800, और कमेंट सेक्शन में आप लोग यूट्यूब पे ये जो भी वीडियो है वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो विथ योर नंबर, सो आई कैन मैसेज एंड आई कैन call you on that. Okay, thanks all of you.